is Sindhu Panika, delighted and privileged to welcome you all to this 5th edition of Orange City Literature Festival. Mythologies are the most important feature of every culture, religion, country, and historical events. Myths are the most fulfilling form of storytelling. They serve to document events, explain the unexplainable, to operate as manuals for morality. While myths are being made new, they grow to represent both the worlds they were set in and today. This groundbreaking interaction opens the door to the unknown and exotic, providing a glimpse into the rich mythic tradition that has empowered millions of human beings for centuries. We usually get very excited by listening to mythological narrations with some questions in mind like, is mythology fiction or non-fiction, religion or tradition, fantasy or history? Ladies and gentlemen, we have with us today the most distinguished personality who will share his expertise by attempting to demystify and decode the folklore and traditions that accompany Indian mythology. It's our honor to welcome our eminent speaker for today, Dr. Devdutt Pattanaik. Who writes on mythology, which he defines as cultural truths revealed through stories, symbols, and rituals. He lectures on the relevance of both Indian and Western myths in modern life. In the last 25 years, he has authored and illustrated over 50 books, including Book of Ram and Dharmic Leadership. He is also known for his TED Talk and TV shows such as Devlok and Business Sutra. He is a regular columnist for reputed newspapers like The Times of India and Dainik Bhaskar. We welcome you, sir. This conversation on Devlok by Dr. Pattanaik is going to be with Mr. Mohammed Master, a businessman by profession with expertise in marketing, accounts, administration, an avid reader with a hunger for knowledge. He's the member of Book Adda, an exclusive book club, a soft skill trainer. He is also volunteering himself in Junior Chamber International, an NGO since 1990. He's also the founder member of Vidarbha Management Association and the member of Rotary Club of Nagpur. As the topic is so very captivating that can make all of us dwell deep into it, forgetting the time frame, I must appreciate the guests of this session for having accepted and structured this topic into a frame of 40 minutes, inclusive of the audience question hour. I request you also note the upcoming session in this hall at 2 o'clock, all about cricket, with R. Sridhar in conversation with Dr. Ashutosh Patulkar. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the much awaited Devlok. One of my friends said that if you talk to Devdutt Pattanaik, please ask him if he could help in writing learnings from the Puranas and others, so that from the scriptures, so that all the Indians could learn more from it. So my first question will be, what is mythology according to your learnings? So I define mythology as a cultural truth. तो जितनी भी संस्कृतियाँ होती हैं, जितनी भी सभ्यता होती है, उनके पास एक सच होता है, उनका सच होता है. And that's what mythology is. So it's not like a scientific truth which is based on fact. It is a cultural truth of a people, लोगों का सच. What do they think is the purpose of life? How do they imagine the world came into being? दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई? दुनिया कैसे खत्म होने वाली है? जिंदगी का पर्पस क्या है? तो इसके लिए साइंटिफिक आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा. इसके लिए you have to find your own answers. And every culture in the world has its own, and they communicate it through stories, symbols, rituals. So when you go to a culture, you have to see अच्छा इनके stories क्या हैं, इनके symbols क्या हैं, इनके rituals क्या हैं, और उससे we understand the mythology of that land. So it's not, normally people think of it as religion, but it is also, there is like atheist mythology, monotheistic mythology, polytheistic mythology. So every culture will have its mythology. तो जैसे हमारे यहाँ कई जगह बताई जाती है कि यहाँ पे राम रुके थे, वहाँ पे सीता का हरण हुआ था. How does that come into it? See, ये in Hindi when somebody asks me to translate it, I always say कि ये विश्वास वाला सच है. I believe this place is this.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉम्बे में जाओ तो बॉम्बे में बाण गंगा टैंक है और लोग कहेंगे कि वहाँ श्री राम आए थे एंड ही हैड शॉट एन एरो एंड वो टैंक का पानी आया, तो आज भी उसको बाण गंगा बोलेंगे, यहाँ श्री राम आए थे। अभी देयर इज नो वे टू प्रूव इट और डिसप्रूव इट, वो विश्वास वाला सच हो गया। इन महाराष्ट्र देयर आर 2 places which say यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ। आंध्र प्रदेश में देयर इज अ प्लेस which is यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। कर्नाटक में जाओ तो वहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ। जटायु का वध कहाँ हुआ? तो इन आंध्र प्रदेश इज अ प्लेस कॉल्ड लेपाक्षी। इफ यू गो टू केरला देयर इज अनदर प्लेस, वहाँ पे बहुत बड़ी जटायु की मूर्ति बनी हुई है, देयर इज दैट इज लेपाक्षी। सो इट वेरीज। अभी लंका कहाँ है? पीपल विल से श्रीलंका, लेकिन अगर आप उड़ीसा में जाओ, सोनपुर गांव में जाओ, तो वहाँ लंकेश्वरी देवी का मंदिर है, बोलेंगे कि सचमुच का लंका यहाँ पे है महानदी में। सो विश्वास वाला सच होता है। I'm wondering, how did you venture into this realm of writing, and why on religion, Sanatan Dharma, more of it? Although you are being a doctor, MBBS. देखिए, to become a politician, you don't need to have a profession. कोई ऐसे नहीं बोलता है कि सर आप ये बेचते थे, वो बेचते थे, लेकिन अभी आप मंत्री बन गए। लेकिन जब आप मिथोलॉजी के ऊपर लिखते हो तो लोग हमेशा पूछते हैं डॉक्टर बन के मिथोलॉजी कैसे लिखे थे। So that's a very funny thing, because anybody can write on mythology, because we all live in mythical universes. I write on all. I don't, as I said, I don't write just on religion. I write on mythology as a concept. और जब मेरी ट्रेनिंग मेडिसिन में हुई थी and I worked in the pharmaceutical industry, I worked for 15 years, 15 साल में pharmaceutical, उसके बाद Ernst & Young में I was a business consultant. But parallelly मेरा हॉबी होता था इसके ऊपर लिखना। It was just a hobby. And क्या होता था कि बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे हमारी कंपनी में, मैं उसको सॉल्व करते समय, या सेल्स मीटिंग होता है तो आई वुड ऑलवेज गिव अ मिथोलॉजिकल एग्जांपल। कोई प्रोडक्ट मैनेजर बन गया तो मैंने कुछ बोलता था, तो पीपल से तुम हमेशा मिथोलॉजी का एग्जांपल्स देते हो, लिखते क्यों नहीं इसके ऊपर? एंड आई रिमेंबर देयर वाज अ पार्टी जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कुछ कॉन्सेप्ट्स, एंड माय फ्रेंड्स हु वाज इन इकोनॉमिक टाइम्स, ही सेज डू यू माइंड राइटिंग अ कॉलम ऑन इट? सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। इट्स जस्ट कैजुअल इंटरेस्ट, जो एक हॉबी होती है, और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आती है, लोग पीपल लाइक योर वर्क एंड आई स्टार्टेड। इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। मैंने अभी कभी सोचा नहीं था कि एक दिन आई विल बी राइटिंग ऑन माइथोलॉजी, इतनी किताब लिखूंगा। आई जस्ट just happened. It was very very casual. I never went to a publishing house. लोग मुझे बोलते हैं कि पब्लिशर को कैसे अप्रोच करना है, ऐसी जिंदगी भर पब्लिशर मुझे अप्रोच करते हैं, मैंने एक बार भी पब्लिशर के पास नहीं गया हूँ मैं। So it's, I think I also had a niche area because not many people wrote on it, and I was not writing mythological fiction which is very popular. लोग normally क्या करते हैं, वो रामायण का कैरेक्टर लेंगे, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखेंगे। But I am not interested in mythological fiction, and many people confuse the two. I am interested in analysis. उसका विश्लेषण करना, गोइंग डीप इनटू इट, ओरिजिन क्या है, स्टोरी कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो इट्स मोर थियोरेटिकल, इट्स वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, एंड आई डोंट थिंक मेनी पीपल डू दैट इन आवर कंट्री. नोबडी डज, रियली, टू बी ऑनेस्ट, nobody does. And there is only one course called comparative mythology course in Bombay University, which is a very rudimentary course, because I have studied there, I have taught there. बहुत rudimentary, बहुत ही basic, because it's also a very sophisticated subject. It is mix of anthropology, sociology, literature, history, सब थोड़ा, you have to know a little bit of everything. थोड़ा, and I don't think there is a department they are trying to create it, but it's very difficult. It's not an easy thing. I try to help them, but वो open mind होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए. So that's how it came to me. Great, nice to know. There are many grunts in Indian Puranic culture, like the Vedas, the Puranas, the Mahabharata, the Ramayana. Which was the first grunt that came into being? So, the funny thing is, in India, you can't write about one book without reading other books. They are all interconnected. So, you have to look at, first, what I do is I look at historically and then geographically. For example, Vedic scriptures are the oldest. Uske baad, Ramayana, Mahabharata manuscripts appear. So Vedic scriptures are about 3,000 years old approximately. And that 3,000 is a long time, because 100 years is 4 generations. I always tell people, so 1,000 years is 40 generations. So we are talking about 120 generations ago, somebody wrote the Vedic corpus.
about 80 generations ago, that is 2000 years ago, Ramayana and Mahabharata was finally written down in Sanskrit. फिर पौराणिक literature emerges. After that, 1000 years ago, regional literature emerges. So Tamil, Bengali, Odia, Marathi, Gujarati literature appears. फिर 500 साल पहले भक्ति literature appears, जो भक्ति माला जिसको कहते हैं. So you have to look at all these traditions और फिर उसको geographically फिर divide करना पड़ता है. For example, जब मैं वैदिक बोलता हूँ तो normally वो गंजेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग. Not all India. वैदिक is primarily गंजेटिक प्लेन. जब हम रामायण महाभारत की बात करते हैं तो फिर हम मध्य प्रदेश एरिया में आए हैं. So that mostly it is written in the मध्य प्रदेश area. पौराणिक लिटरेचर जब आता है तो then you start seeing kingdoms. For example, विष्णु धर्मोत्तर पुराण is written in Kashmir. पद्म पुराण is written in बांग्लादेश, जहाँ पोद्दो रिवर है, which is the गंगा बेल्ट का है. So every पुराण is written in different parts of India. फिर धीरे धीरे the whole India starts to get involved. रीजनल लिटरेचर जब आता है तो क्लियरली फुल इंडिया हैज गॉट इन्वॉल्व बिकॉज तमिल रामायण मिल गया आपको, उड़िया मिल गया, महाराष्ट्र में यू स्टार्ट फाइंडिंग लिटरेचर रिटन, इंस्क्रिप्शंस आने लगते हैं, मूर्ति आने लगती हैं. सो नाउडेज यू डोंट जस्ट रीड लिटरेचर, यू आल्सो हैव टू सी आर्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल, विष्णु जी की जो मूर्ति है विच इज़ वेरी फेमस, अनंत शयन, उसकी सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ पे मिलेगी? तो उसकी सबसे पुरानी मूर्ति आपको झांसी के पास देवगढ़ के पास मिलेगा. दूसरी मूर्ति आपको भोपाल के पास उदयगिरी के पास. उसके पहले ये मूर्ति नहीं थी जो अनंत शयन की मूर्ति है. सो इट इज अबाउट 1500 years old अप्रॉक्सीमेटली. उसके पहले नहीं था ये मूर्ति नहीं थी. सो आई हैव टू स्टडी ऑल दिस बिफोर आई राइट वन बुक. यू कांट जस्ट, तो a whole creates the part and parts create the whole. So you have to know everything. Little bit of everything. तो when I started writing, और मैं शुरुआत हुई कॉलम से. I used to write a lot of columns, and in columns you can jump between topics. तो that gives you a wide spectrum. Book क्या होता है, बहुत focused होता है, but columns में कभी आर्किटेक्चर के बारे में लिखा, कभी आर्ट के बारे में लिखा, कभी टेक्स्ट के बारे में लिखा, कभी नॉर्थ इंडिया के बारे में लिखा, कभी साउथ इंडियन. तो धीरे धीरे even now I write about 3 columns a week. So in every column I get to know something about. अभी मैंने ट्राइबल मिथोलॉजी के ऊपर लिखा, भील के ऊपर, गोंड्स के ऊपर. So that is very different. फिर सडनली मैंने शिव जी के ऊपर लिखा. तो शिव जी ऑफ नॉर्थ इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम शिव जी ऑफ साउथ इंडिया. शिव जी ऑफ साउथ इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बंगाली शिव. तो बंगाल के साइड में अगर आप शिव जी की मूर्ति देखो तो बहुत ही अलग होती है. तो आई लाइक टू मेक पीपल अवेयर कि देखो इंडिया इज सो डाइवर्स. तो there is no favorite. अगर आप बोलो ना, so everything I do a little bit. Everything is regional, historical. So it depends on which. So ये जो एक framework मैं बनाता हूँ कि history और geography को हमेशा देखो, उसमें locate करो story को पहले. And that has happened. अभी 25 साल के बाद वो मेरा style हो गया. पहले नहीं था ऐसे. जब मैंने पहली बार लिखी तो मैंने history के बारे में सोचा भी नहीं था. ज़्यादातर वो लोग पूछते थे कि मिथोलॉजी हिस्ट्री मिथोलॉजी, इतना 25 साल से वही क्वेश्चन मैं सुन रहा हूँ. बट आई एम इंटरेस्टेड इन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द स्टोरी. फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मैंने पेपर लिखा था कि अगर आप महाभारत के सबसे पुराने वर्जन को देखें तो वहाँ पे वस्त्रहरण नहीं होता है. द्रौपदी का वस्त्रहरण इज नॉट फाउंड इन द ओल्डेस्ट लेयर, इट इज फाउंड इन द लेटर लेयर्स. यू नो, ये जो हम बोलते हैं ना, द्रौपदी ने अपने बालों को कहा कि मुझे बाल से, मुझे रक्त से, मुझे, तो हमको लगता है कि ये व्यास के महाभारत से आता है. ये नहीं. देयर इज अ संस्कृत वर्क कॉल्ड वेणी संहार रिटन बाय भट्ट नारायण इन 8th century AD इन बंगाल, जहाँ पहली बार हम ये पढ़ते हैं कि द्रौपदी कहती है कि मेरे बाल को खून से नहला के आई वॉन्ट टू टाई माई हेयर. ये आपको ओरिजिनल में नहीं मिलेगा. सो ये सब बातें मुझे एक्साइट करती है आजकल. पहले ज़माने में I used to just tell the story, but now I think I enjoy these things. How does this change come? जैसे आप बोले कि द्रौपदी का पहले उसमें वस्त्रहरण नहीं हुआ है, बाद में वो बताते हैं कि हुआ है. So क्या होता है, देखिए पहले स्टोरी में the woman is abused, मतलब उसे she is in her periods. जो oldest version है, description है कि she is in her periods और उसको रखा गया है, वो she is in her private chambers, उसको बाल से घसीट के बाहर ला रहे हैं. So that's a very
डिस्टर्बिंग इमेज एनीवे। और ये जो कहानी है, अगर आप कर्नाटक में जाओ, हलेबिन स्कल्पचर्स है होयसला, वहाँ पे ये मूर्ति दिखाई दी है कि ही इज बीइंग ड्रैग्ड, उतना बताया गया। बट क्या होता है ना, जब नया राइटर लिखता है उसको वो और सेंसेशनलाइज करना है, उसको एक और लेयर, जैसे आजकल भी वो है हर न्यूज़ आइटम में कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, तो लेखक ब्रेकिंग न्यूज़ करने लगते हैं। तो धीरे धीरे स्टोरी में और आता है कि अभी उसको दुशासन ने उनका कपड़ा निकाला, फिर कृष्ण आके उन्हें बचाया, फिर भीम ने एक वाव लिया कि आई विल ब्रेक द थाई ऑफ दुर्योधन, and then Draupadi says I will not tie my hair. So now with every story it becomes even more dramatic. तो हर लेखक अपना ड्रामा लेके आ रहा है, एक्साइटमेंट, तो संजय लीला बंसाली टाइप से ना, हर मेरे कुछ ड्रामा चाहिए। तो व्यास का ड्रामा is also very painful, and what is not changed is a woman is being disrespected. Even a woman of high class, she's high class, high prestige, she's an elite, सब कुछ है उसके पास, प्रोटेक्शन है, उसको भी ऐसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड यू नो दिस होल स्टोरी ऑफ किस द्रौपदी हंस पड़ी थी, ये व्यास में नहीं है, ये बॉलीवुड ने क्रिएट किया है, लोक कथा से आया है। व्यास में ये नहीं है कि शी लाफ्ड एट अ ब्लाइंड पर्सन इसलिए शी डिजर्व्ड इट, ये सब जो है इट्स मिसोजिनी, इट्स यू नो एंटी वुमेन नैरेटिव्स जो 15th-16th सेंचुरी में आता है। सो ये समय के साथ कहानी बदलते हैं, कोई कहानी स्टैटिक नहीं रहता, और कहानी बदलने लगता है, और उससे पता चलता है कि समाज बदल रहा है। जब भक्ति पीरियड बनता है तो श्री कृष्ण प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो भक्ति, व्हेन भक्ति बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड श्री कृष्ण के कम्स टू द्रौपदीज रेस्क्यू। ओरिजिनल वर्जन में ये नहीं आता है, ओरिजिनल वर्जन में शी हैज टू सर्वाइव अलोन, देयर इज नो कृष्ण कमिंग टू योर रेस्क्यू। तो फिर स्टोरी कैसे बदल गया, धीरे धीरे करके कृष्ण कम्स एंड रेस्क्यूज। अगर सारला महाभारत के उड़ीसा के जो उड़िया महाभारत है, वहाँ पे कृष्ण डजंट हेल्प, ही गोज टू सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान से कहते हैं कि देखो द्रौपदी इन हर प्रीवियस लाइफ हैड गिवन यू क्लॉथ फॉर योर सन्स वेडिंग, अभी आप उसके ऋण में हो, अभी शी इज इन ट्रबल, यू गिव हर क्लॉथ। तो वाया सूर्य वो उसको बचाते हैं, वो डायरेक्टली नहीं बचाते हैं, वो वाया सूर्य बचाते हैं। अभी ये कहानी लोगों को पता नहीं है, बट इट इज देयर इन सारला दास महाभारत। सो अगर आप केरला के भरत पट्टू पढ़ें तो वहां पे कहते हैं कि विदुर खड़े होकर कहते हैं सभा से कि धर्म चाह रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, अ वुमन इज बीइंग अब्यूज्ड, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तो धर्म के जितने भी लोग बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने अपना उत्तरिया निकाल के द्रौपदी को दिया था। सो इट इज नॉट कृष्ण आके मैजिकली कपड़े बचाए, कि वहां के जो डिसेंट लोग थे उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, और अपना जो उत्तरिया था उसको निकाल के उसके ऊपर फेंकते थे, सो दैट शी इज कवर्ड। सो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। तो उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, जो मलयाली स्टोरी दैट इज आल्सो रिटन अबाउट 500-600 years ago। उड़ीसा का स्टोरी यूजेस मैजिक, कि सूर्य भगवान एंड ऑल दैट। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसी प्रॉब्लम की कहानी बनाई। Okay. Does anybody have any questions in the audience? Yes, ma'am. Somebody will have to help with the mic. One mic. Thank you so much, Devdutt, for coming to Nagpur. I was waiting for you since a very long time. I started my spirituality journey, or you can say at least Ask the a question. No? Ask a question. The thing is that I want to know whether, as you said, that there are versions of stories with each state, and it carries on with it and it evolves with it. My question is that totally fiction, or is that somewhere the history has been done there and it's a version of it? Like the wars are happening nowadays on planet with each country. So is that the same, that in the States there were versions of the story and Got it. heroes were the same? So mythology is trying to communicate an idea, right? So for example, it's not a historical document. ये हुआ और मैंने देखा और लिखा. Now, when you ask questions like what is real, imagine your mother telling you a story.
that her mother-in-law treated her badly. Now, is it true or false? How do you know your mother is not telling the truth or she's creating a fiction? Because if you go and ask your nani, she will say, मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया था. So now you have सास बहू conflict and you have to decide. सच क्या है? बताओ. नानी के पास ज़्यादा पैसा है. अभी कोई स्टोरी और डिफिकल्ट हो गया. Because कैसे डिसीजन ले? फिर you have fought with your mother. तो obviously she's a liar. So story keeps changing. So now, see, Katha को पंचम वेद कहते हैं, the fifth Ved, through which Vedic ideas were communicated. So stories are designed to communicate ideas. Always remember that they are not designed to communicate facts. That is history, science. They are not interested in ideas. जो history लिखता है, वो idea में interest नहीं है उसको. उसको वो मारा. I'll give you an example. Person A killed person B. Now that's a fact. Person A killed person B. That's a fact. But one person will write A is a hero who killed a villain. Another will say A is a cruel king who killed a revolutionary. Somebody will say A is a brave king who killed a terrorist. Such कौन सा है? Fact सिर्फ A killed B. That is the only fact. So be careful of words like fact. What we receive is ideas. So when the Mahabharata is being written, the Ramayana is being written, वो लोग एक idea communicate कर रहे हैं. दुनिया को सोचने का तरीका. For example, Ramayana is about तपस्वी राजा. ये concept है. तपस्वी राजा का मतलब क्या है? It sounds like a romantic concept. What does it mean? तपस्वी राजा का concept क्या है? Or let me explain. Ramayana and Mahabharata, when we are talking about, they are really the same story. Ramayana and Mahabharata में कोई फर्क नहीं है. Structurally, at a structural level, just indulge me. I'm going to tell you this audience. Both Ramayana and Mahabharata की जो first part है, वो palace politics होता है. Palace politics. एक जगह कैकेयी है, दूसरी जगह में दुर्योधन है. Palace politics. राजघराने का politics. Second part वनवास. दोनों में वनवास. एक 14 साल, कभी 13 साल. वन में विचित्र अनुभव. एक देखता है वानरों के साथ सुग्रीव की कहानी, किष्किंधा की कहानी. महाभारत में विचित्र चीजें. वो हनुमान के साथ एनकाउंटर है, किराटों के साथ एनकाउंटर है, और विराट पर्व में जाके राजा नौकर का काम करता है. सो सडनली basically situation where there is no good king. तो राजा जंगल में जाके देखता है, अनुभव करता है कि what happens जब राजा नहीं होता है तो कैसा अराजकता होता है. थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट, दोनों स्टोरीज में नेगोशिएशन. युद्ध मत करो. तो अंगद जाके रावण से बात करता है, यहाँ कृष्ण जाके कि युद्ध मत करो. बड़ा चैप्टर होता है कि मत करो युद्ध, मत करो युद्ध. देयर आर वेरी टेक्निक्स. वॉर मत करो. उसके बाद वॉर, दोनों में वॉर. उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर. वॉर में लोग श्राप देते हैं, श्राप देते हैं. हैप्पीनेस नेवर हैपेंस. रामायण में सीता इज अबैंडेंड. महाभारत में गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को मिलता है. सो नथिंग इज नॉट अ हैप्पी एंडिंग. और रामायण begins with Ram's birth, ends with Ram's death. Mahabharata begins with Pandav's birth, ends with Pandav's death. दोनों स्टोरीज एक ही हैं. फर्क क्या है? एक जगह पे जो राजा है हम कहेंगे वो भगवान है, विष्णु का रूप है. So he is a king. महाभारत में राजा नहीं है. जो राजा है वो आदमी है, मनुष्य है. उसका जो कोच है वो भगवान है. और कोच को समझ में आता है कि आदमी कितना निकम्मा है. जिस भगवान भी जब कोच करते हैं वो सिक्सर नहीं मारता. दैट इज द ट्रेजेडी. कृष्णा's ट्रेजेडी कि वो देखता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स देखो कितने बेकार निकले. सो राम बनना कितना मुश्किल है. सो दैट इज हाउ दी स्टोरीज आर. इट्स एन आइडिया.
But of course people want to make it historical. They are usually not very educated people. अगर आपको educated करना है और अगर आपको ऊपर जाना है तो विचारों की दुनिया में आओ. वो सरस्वती की दुनिया है, राजनीति की दुनिया नहीं. So idea देखो, what is they are trying to explain? What is a good king? What is the meaning of a good king? तपस्वी राजा बनना कितना मुश्किल है कि तुम रावण को मारते हो, उसकी पत्नी तुम्हें श्राप देती है, तुम वाली को मारते हो, उसकी पत्नी उसको श्राप देती है, और लास्ट में हैप्पी एंडिंग नहीं है. तुम राजा हो, तुम्हारे बच्चे जंगल में बढ़ रहे हैं. I want to tell you the, sorry, I'm just extending this because it's a very great question. Kushalava हम बोलते हैं ना, Kushalava, love kush, but Kushalava का मतलब क्या है? जो रास्ते में गाना गाता है, रास्ता में गाना गा के जो बार्ड होता है, आके नाचता है, गाता है, आपके गली में नाच के गाता है, उसको संस्कृत में कुशलवा बोलते थे. And that is what it means. So how these stories change कि राजा, the name Kushalava has a different meaning. So imagine Raja Ram, when you say love Kush, but love Kush, of course there are other stories कि love और Kush बड़े बड़े राजा बने, but the name Kushalava has a different meaning. कि तपस्वी राजा का बेटा का नाम देखो कैसे इस्तेमाल किया गया. When you read Manusmriti, when you read धर्मशास्त्र, Kushalava refers to नाचने वाला आदमी. When I read it for the first time, I was shocked. कि इसका मतलब है कि तुम बड़े राजा हो सकते हो. You cannot decide the fate of your children. And such a disturbing story, right? It's like कि देखो राजा राजा होता है, राजा इतने बड़े राजा का बेटा भी जंगल में बढ़ा. So that is what they're trying to explain. Is it historical fact? I don't know. If you want to believe, good for you. But for me, it is Vishwas wala sach. Yeah. Can we take one more question? You take one, we keep alternating. I'll ask you next time. So Shiva is a destroyer, Yeah. but still we worship him. Whereas Brahma is a creator. And I think we only have one temple in India, in Pushkar. So how's that? So what happens is ये English का problem है. We think creator is good, destroyer is bad. तो हमारे दिमाग में बैठा है, because destroyer सोचते ही हम सोचते हैं कि bomb explosion हो गया. And आजकल heroes भी ना आजकल चलते हैं तो उनके पीछे bomb explosion होता रहता है. So nowadays if you see all those big Bollywood heroes, when they walk, almost always there's a bomb explosion behind them. The thing is, we have to ask the question, what does Brahma create? What does Shiva destroy? And the moment I use the English word, we are thinking of objects. वो building तोड़ा, घर तोड़ा, but they are really referring to again concepts. Brahma creates life, which means he creates hunger, भूख. भूख का निर्माण होता है, जिसको हम संस्कृत में काम कहते हैं, भूख, hunger. So when there is hunger, plants start to grow, animals start to migrate, humans have ambition. और भूख से क्या होता है? जब भूख होती है तो ambition आता है, ambition जब आता है तो greed आता है, pride आता है, jealousy आता है, frustration आता है. इन सब का निर्माण ब्रह्मा ने किया है, जिससे लड़ाई होती है. ब्रह्मा के बच्चे लड़ाई करते रहते हैं. जो गरुड़ होता है वो नाग से लड़ाई करता है, जो कौरव पांडव से लड़ाई करता है, सुग्रीव वाली से लड़ाई करता है. तो भाइयों के बीच में लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मा ने भूख की निर्माण की, महत्वाकांक्षा की निर्माण की. शिव जी कहते हैं कि इसी को तोड़ दो, तो वो अपने तीसरी आंख से कामदेव को जला देते हैं कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, नो महत्वाकांक्षा. फूको और दैट इज शिव जी. आराम से बैठे हुए हैं पहाड़ के ऊपर, बोले टेंशन मत लो, कुछ नहीं करना, बैठो. बट दुनिया ऐसे नहीं चलेगी. अभी सब लोग बैठे रहेंगे पहाड़ के ऊपर, दैट इज अ नाइस प्लेस, बट प्रॉब्लम है पूरा दिन क्या करेंगे, नहीं फूकते रहो, ऐसे नहीं होता. नॉट ये प्रॉब्लम. कैसे कहानी के माध्यम से, रिमेंबर पंचम वेद, सिंपल तरीके से वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज समझा रहे हैं कि अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो पेड़ भी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बोलेगा मुझे नहीं खाना है. फिर जानवर भी नहीं मूव करेगा कि मुझे क्यों घास की तरफ जाऊं, क्यों मैं शिकार करूं.
प्लांट्स वोंट ग्रो, एनिमल्स वोंट रन, नथिंग विल हैपन, पूरी प्रकृति समाप्त हो जाएगी। जो महत्वाकांक्षा है, जो भूख है, उसी से सृष्टि का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है, संस्कृति का निर्माण होता है, भला या बुरा होता है। तो फिर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए फिर विष्णु भगवान आते हैं और वो कहते हैं कि देखो भूख को बैलेंस करना चाहिए। कैसे बैलेंस करें? दूसरों की भूख को देखो, अपनी भूख के बारे में मत सोचो। तो फिर दूसरों की, तो श्री राम जैसे विष्णु, इफ यू लुक, आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन इन माय वर्कशॉप्स, राम की महत्वाकांक्षा क्या है? एंड आई गिव एवरीबॉडी 1 hour, इतने आंसर्स, जस्ट डू दिस एक्सरसाइज। रामायण में राम की महत्वाकांक्षा क्या है? महाभारत में श्री कृष्ण का महत्वाकांक्षा क्या है? आर दे सक्सेसफुल इन, फर्स्ट व्हाट इज देयर एम्बिशन? आर दे सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर एम्बिशन? एंड यू विल रियलाइज द आंसर इज नॉट सिंपल, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो संतोष होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, उनकी महत्वाकांक्षा नहीं होती उनके पास। देयर प्रॉब्लम है सामने वाले को भूख लग रहा है एंड दे हैव टू सैटिस्फाई द महत्वाकांक्षा सामने वाले का कि भैया इतना भूखा है, इतना भूखा है। अभी मंदिर में जाओ, रिचेस्ट पीपल गो टू द टेंपल एंड दे लुक लाइक बेगर्स। भगवान के सामने, सर मेरी झोली भर दो। भैया तेरे पास $7 billion है। नहीं, बट भगवान मेरी झोली भर दो। कितनी बड़ी झोली है यार, इट्स लाइक पापी पेट का सवाल है। भगवान बोलते बड़ा ही पापी तेरा पेट है, नहीं देता रहूंगा, क्योंकि सब लोग बकासुर बन गए हैं और बकासुर को भगवान भी खाना नहीं दे सकता। And that is how the stories are designed. So what is a creator, what is a destroyer, what is a preserver, इसके ऊपर चिंतन करना है। It is not कि बॉम्ब ब्लास्ट करने से मैं डिस्ट्रॉयर बन गया। That is a very pedestrian approach to thinking. I always remind myself कि जो वेद, ये जो किताबें लिखी गई थी वो पंचम वेद है। They are trying to communicate Vedic ideas, and these are very refined ideas to help us live a good life. So now again Shiva, he has दो तरीके से रहते हैं, एक तो ascetic साधु, एक householder. तो what about it? So see this idea which I said कि जब वो पहाड़ के ऊपर होते हैं, so it's one story which I keep saying. आपने कभी शिव जी की फैमिली फोटोग्राफ देखी है? तो शिव जी हमेशा बोलेंगे कि वो तपस्वी है, सन्यासी है, लेकिन उनका फैमिली फोटोग्राफ होता है। सन्यासी का फैमिली कहाँ से आया? कोई नहीं पूछता है। आपने कभी विष्णु भगवान को अपने बच्चों के साथ फोटो देखा है? नहीं। वो तो इट्स वेरी फनी, श्री कृष्ण को बच्चों के साथ देखा है? नहीं। श्री राम को लव और कुश के साथ ऐसे बैठ के फैमिली फोटो लिया है? नहीं। किसका फोटो है? शिव जी का, जो तपस्वी है। सो दैट इटसेल्फ इज आयरॉनिकल। एंड देन यू रियलाइज कि शिव जी जो कैलाश पर्वत में है और दूसरा है काशी में, तो एक सिंगल एंड दूसरा फैमिली, इन दोनों के बीच में शिव जी की कहानी क्या है? जैसे अगर आप बुद्धिस्ट स्टोरी पढ़ें तो बुद्ध की स्टोरी क्या है? वो एक शादीशुदा आदमी थे, उनके बच्चा था, राज्य था, सब कुछ था, वो छोड़ के सन्यासी बने। शिव जी की कहानी उसके विपरीत है। शिव जी की कहानी इज द ऑपोजिट। जो सन्यासी है वो गृहस्थी बनता है। सो यू सी टू ऑपोजिट स्कूल्स ऑफ थॉट। एक है जिसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में पूरी दुनियादारी छोड़कर तुम सन्यास की तरफ जाते हो। और दूसरा होता है प्रवृत्ति मार्ग, जहां पे जो दुनियादारी छोड़ा है, जो शिव जी है, वो सब कुछ छोड़ दिए हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप शादी करो, शादी करो, शादी, फिर शादी करने के बाद बच्चा पैदा करो। विच इज वाई यंग पीपल लव शिव जी, द फर्स्ट शिव जी, कि नहीं नहीं हम फूक के अकेले बैठे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। I have heard this from every young man. उसके बाद because दिल टूट गया, सती ने मुझे छोड़ दिया, all those songs you will see young people और YouTube में करते रहते हैं। 10 साल बाद उनको मिलो, शिव जी के जैसे 2 बच्चे, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सब बगल में आ गए। सबको काशी लेके आ जाती है देवी। देवी को पता है कि भैया लाइन में लेके आओ, सेटल करा दो, सेटल करा। सही। So we are almost at 1:40.
has to go on. No, Okay. One last audience question, please. We can extend it at least to 2 o'clock. Please, please. As I said, we have the next session lined up. No, I'm sure you people. What's your tribal god? So this is a very, you see, we don't know what is God. Every human being at one time was a tribal. So all gods essentially are tribal gods. All gods. There is no non-tribal god. Krishna is a tribal god because he's the pastoralist. हर ट्राइब में एक सरदार होता है, तो सरदार तपस्वी राजा हो सकता है. हर ट्राइब में, so we create these images because Shivji looks in our head primitive. Because वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, वो मृगछाल पहन रहे हैं, उनके हाथ में भस्म है. तो जब हम ये देखते हैं कि एक आदमी भस्म पहना हुआ है और मृगछाल पहना हुआ है वर्सेस एक आदमी जो सिल्क के कपड़े पहना है, चंदन लगाया, सो वी अज्यूम कि ये ट्राइबल है और ये एक सिटी ड्वेलर है या सिविलाइज्ड है, बट दैट्स नॉट इट. अगेन, एंड आई विल कंक्लूड विद दिस ओनली, सो आई डोंट माइंड. सो देखिए, जब आप शिव जी की मूर्ति देखिए और विष्णु जी की मूर्ति देखिए ठीक से, और अगेन रिमेंबर पंचम वेद, दे ट्राइंग टू कम्युनिकेट कॉन्सेप्ट्स, दे ट्राइंग टू कंसीडर. सो शिव जी को अगर आप देखें तो ही इज वेयरिंग थिंग्स विच आर अवेलेबल इन नेचर. कि जंगल जल गया, वहां भस्म आ गया, वो भस्म लगा दिया. वहां पे मृगछाल मिल गया, मृगछाल पहन लिया. सो अकेला आदमी ऐसे रह सकता है. लेकिन जब विष्णु जी को कपड़ा पहनाना है, यू वांट टू वेयर फैब्रिक, then you need a farmer who grows cotton. You need a spinner who will spin yarn. Then you need a weaver who will weave the cloth. Then you need a dyer who will give it a color. तो मतलब I need a farmer, a spinner, a weaver, a dyer. वो जो गहने पहनने के लिए I need a miner who will get the metal. फिर मेटल को क्लीन करेंगे, मेटल स्मिथ चाहिए, कारीगर चाहिए, ज्वेलर चाहिए, यानी कि पूरी एक सभ्यता चाहिए श्री कृष्ण के लिए, राम के लिए. So suddenly you realize Shivji represents the world of the tapasvi and Vishnu represents the world of the raja. एक तपस्वी है और एक राजा है, लेकिन हम लोगों को like all Indian things, हमको जैसे शेजवान चिकन चाहिए, वैसे हमको तपस्वी राजा चाहिए. और हम and that's how you create तपस्वी राजा. कि मुझे एक ऐसा राजा चाहिए जो मेरे बारे में सोचे, ना कि अपने बारे में सोचे. तपस्वी राजा का मतलब क्या है? वो कहता है कि देखो, मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद लाइफ, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट मीन डायलॉग बाजी, आई जेन्युइनली मीन इट, बिकॉज ये डायलॉग मारना बहुत आसान है कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए. बट इमेजिन समवन हु सेज आई लिव फॉर योर हैप्पीनेस. हाउ डू यू प्रूव इट इन अ स्टोरी में? कैसे प्रूव करोगे? आप दिखाओगे कि देखो एक बड़ा राज्य है कौन, राम राज्य, वहां पे एक पैलेस है जहां राम पूरी सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम, लेकिन उनकी फैमिली जंगल में सड़ रही है अकेले, उनकी पत्नी उनके बच्चे जंगल में हैं. ये है तपस्वी राजा. सो ही इज समवन हु इज वर्किंग फॉर पीपल एंड ही इज डीलिंग विद दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन द स्टोरी. कि ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज ओन फैमिली, ही इज सफरिंग, हिज फैमिली समवेयर देयर. And that is these questions that there is. तपस्वी राजा का मतलब क्या है? Justice की बात आती है, injustice की बात. Is it fair to the children? Personal versus the professional. Is personal decision more important or professional decision more important? Given a choice, जिसको हम धर्म संकट कहते हैं, राज्य के लिए हम अपना सुख त्यागने को तैयार है कि नहीं? राजा के लिए ठीक है, प्रजा के लिए नहीं. राजा के लिए ठीक होगा, प्रजा के. सो ये तपस्वी राजा का कॉन्सेप्ट शुरू होता है. हनुमान जी, व्हाई डू दे से हनुमान जी? हनुमान जी के पास बहुत पावर है, सबको पसंद है आजकल. हनुमान जी का महत्वाकांक्षा क्या है? उनकी फैमिली क्यों नहीं है? उनके बच्चे क्यों नहीं है? व्हाई इज ही? सो दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. देखो, ये तपस्वी योद्धा है. सो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, शुडंट यू ट्राई टू बिकम अ किंग? Hanuman says, "No, I'm happy being a monkey eating bananas, even though I have all the powers in the world." And एक flick में, in fact, I'll conclude with my favorite story of Hanuman,
उनकी माँ को वो जाके बोलते हैं कि पता है हमने क्या किया? ने बोला बताओ, अंजलि मदर्स अंजलि बताओ क्या किया? तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो हमने छलांग मारी, लंका के पास गए, वहाँ पे एक बड़ा सेतु बांधा, युद्ध किया राक्षसों के साथ, रावण को हराया और सीता को घर लेके आए। तो उनकी मम्मी लाइक ऑल इंडियन मदर्स वाज वेरी नॉट हैप्पी। शी सेड तुम तो इतने पावरफुल हो, अगर इफ यू वांटेड तुम एक पूंछ से तुम रावण को हरा सकते थे, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये बड़ा सेतु बनाओ, यू कुड जस्ट 1 सेकेंड में रावण को उड़ा देते थे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे राम ने कहा नहीं कहा ये करने को, कोई बोला नहीं करने को तो मैंने नहीं किया। ये कहानी तो राम की है ना, मेरी कहानी थोड़ी ना है। Thank you, Devdutt. Friends, we have a lot of questions and we need answers for that, and we are looking forward to Devdutt to answer them. But that is why he has written so many books. Please buy them. Please buy them. So I suggest get those books and read them, and you will get all your answers. It's not on the mythology. It's a question for you. Various part of the country, people fall in love with you, your writing. How challenging is it to convince people with one point telling that this is how it is? Because you know we will have a lot of debate asking who's the first son of Shivji. North will have a different answer, South will have a different answer. So how challenging it is to convince people, and what is the sutra that you have for making people fall in love with your writing? So I don't carry the burden of convincing people. देखिए आप खाना परोस सकते हैं, खिला नहीं सकते। वो आदमी खा सकता है, लेकिन अगर पाचन शक्ति नहीं है तो उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो all a writer can do is serve the food in the most nutritious, tasty way. I cannot control the eating, I cannot control the understanding, I cannot control the. So I have heard people saying, sir, in your book you wrote this, and I'm like, I never wrote this. किसी और को quote करके बता रहे हैं, and really they're telling their own philosophy and trying to get validation out of me, and I'm like, no, I don't think I just agree with them. हाँ, very good, read the book second time. And I tell them 3 more. क्या करें? See, the thing is, India is not a religion. India is not a land where we are missionaries. I don't have to convince you. नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, तेरा कर्म है यार, मेरा कर्म थोड़ी ना है। So we have to remember this. Do not carry the burden of convincing people, especially on WhatsApp. Thank you very much. Thank you.